Now we are going to discuss the President of India as a chief executive, Prime Minister as a chief executive, so PM, and chair of Union Council of Minister भी करता है. Although President of India's constitutional nominal ceremonial head होता है, but in practice of ordinary executive authority is vested in PM and their chosen council of ministers. So PM is the of elected leader of elected party with the majority of lower house of Indian parliament. So he has a majority of lower house. Okay, majority of lower house, which is the main legislative body, and the prime minister and their cabinet are at all time responsible to the Lok Sabha, and they are responsible to Lok Sabha. The Prime Minister can be member of Lok Sabha or Rajya Sabha, the upper house of parliament. The Prime Minister rank third in order of precedence. And rank third होती है किसमें? Order of precedence. Okay. So Prime Minister is appointed by President. The PM has to enjoy the confidence of majority of Lok Sabha who are directly elected for the 5 year. 5 year का क्या होता है? Direct election, and that is the 5 year. Unless the PM resign, the Prime Minister is presiding member of Council of Minister. The PM alternatively controls selection, dismissal of the Council of Minister, allocation of post. So allocation of post. The council, which is collectively responsible to Lok Sabha under Article 75 and 3, assists President regarding the operation under the latter power. And Article 74 of Constitution, aid and advice tendered by council is binding. So aid and advice is binding. This is binding. Aid and advice is what? This is binding. Since 1947, India has a 14th Prime Minister. Like Jawaharlal Nehru is the first one serving Prime Minister of Dominion India, and 15 August 47 to 50. And thereafter Republic of India has there's a death in May 1964. India conducted first post-independent general election in 1952. Earlier Nehru had served as a PM of interim government of British Raj of 2 September 1946 to 14 August 1947. His party, the Indian National Congress, having won in 1946 Indian provincial election, Nehru succeeded by the Lal Bahadur Shastri 1 year 7 months. And Tashkent, his death was in Tashkent than in USSR, where he has signed the Tashkent Declaration. Indira Gandhi, Nehru daughter, succeeded in 1966 to become the country's first female prime minister. 11th year later, her party, the Indian Congress, lost majority, and 77 में Janata Party was leader was Morarji Desai, become the first non-Congress. After Desai, 79 former associated Charan Singh briefly held office until the Congress won in 1980. Again in 1980, who won Congress, and in 1979 there was a Charan Singh. Okay, and when the was assassinated, so Prime Minister Indira was assassinated after 5 years, and by her bodyguard. Rajiv Gandhi was sworn in India's youngest premier member of Nehru Gandhi family, has been a Prime Minister of 38 years, approximately 38 years. So after a general election loss, Rajiv Gandhi 5-year term elected as a now former cabinet colleague VP Singh of the Janata Dal formed the year-long National Front coalition in 1989. A 7-month interlude under the PM Chandrasekhar. There was a VP Singh. After then Chandrasekhar followed, after which Congress party returned to power, forming the government of PV Narasimha Rao in 1991. Rajiv Gandhi having been assassinated earlier, and Rao first year was the term is succeeded by the 4 short-lived government. Atal Bihari Vajpayee आ गए then from the Bharatiya Janata Party 13 days के लिए in 1996. A year each under the United Front Prime Minister HD Deve Gowda and the Indra Kumar Gujral, and Vajpayee again 13 month के लिए आए 1998 to 1999. So in between of that there was a Indra Kumar Gujral and Deve Gowda. Vajpayee National Democratic Alliance won the general election, first non-Congress to do so, and served full 5 year. मतलब he term as a full 5-year term. The Congress and its United Progressive Alliance won the general election in 2004.
to 9, that was the Manmohan Singh government serving the prime minister. And the BJP won in 2014 and its parliamentary leader was Narendra Modi. BJP went on to win 2019 again with a bigger margin and granting second term of the incumbent Modi. After 2024 Indian general election, Modi became the prime minister of third consecutive term and leading to a coalition government after BJP lost majority. Only the second to do so after first prime minister of Jawaharlal Nehru. So after Jawaharlal Nehru, only the Narendra Modi who can do this. So assassination was also there. A list of prime minister I can give here. Some assassination, return to the office, no consecutive term, resign कर लिया या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन या डिसमिसल, ऐसा कुछ. ठीक है, तो पहले हैं जवाहरलाल जी. 89 से वर्क कर रहे हैं 1964 तक. एमपी और प्रोविंशियल अलाइंस हो गए, फूलपुर से थे ये. ठीक है, तो ये आ गए 57 डेज़ के लिए और फिर आए 274 डेज़ के लिए. 27 मई 1964 तक ये रहे. ठीक है, 15 अगस्त से. एंड 16 ईयर तक का कार्यकाल रहा है. 286 डेज. 51 टू 57 टू 62. एक्सटर्नल एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स देखे हैं इन्होंने. डिफेंस भी इनके अंडर में रहा, फाइनेंस भी इनके अंडर में रहा उस समय. फिर आई गुलजारी लाल जी नंदा. यहाँ पे MP फॉर द सब्रकांता. ये सब्रकांता से थे, ये फूलपुर से थे. तो गुलजारी लाल जी जो आए थे दैट वाज इन 98 से 98 तक इन्होंने वर्क किया. 100 साल का कार्यकाल हो गया पूरा. और ये 65 ईयर तक यहाँ पर रहे गुलजारी लाल जी. और ये गुलजारी लाल जी जो नंदा हैं 27 मई 1964 को बनते हैं. फिर 9 जून 1964 को 13 दिन के लिए आते हैं. होम अफेयर, एक्सटर्नल, एटॉमिक. तो ये ओनली 13 डेज के लिए कौन आते हैं? गुलजारी लाल जी नंदा. ठीक है, उसके बाद में लाल बहादुर जी शास्त्री आएंगे. MP फॉर इलाहाबाद. ये क्या है? MP फॉर इलाहाबाद हैं. तो यहाँ पर ये लाइक 59 ईयर तक, 251 डेज तक. 64 से 66 मतलब 1 साल और 216 दिन का कार्यकाल है. एक्सटर्नल अफेयर देखेंगे यहाँ पे ये लाल बहादुर जी. फिर अगेन गुलजारी लाल जी आ गए यहाँ पे 66 से 66, 11 जनवरी से 24 जनवरी. मतलब 13 दिन के लिए पहले ये आए, अगेन यहाँ पे 13 दिन के लिए आ गए ये. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, तो ये नंदा जी 2 बार आते हैं 13 दिन के लिए. ठीक है, फिर आते हैं इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जब आई यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश से हैं और राय बरेली से MP ही रह चुकी हैं. 66 से 77 का कार्यकाल देख लीजिए आप. 24 जनवरी से 24 मार्च तक का काम है इनका. 66 और 70, जनवरी एंड मार्च. 11 साल तक ये रही यहाँ पर. 11 साल 59 डेज तक. 66 से 71 तक देख लीजिए. एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, होम, इंफॉर्मेशन और डिफेंस, ये सारे ही काम इन्होंने देखे. फिर मोरारजी देसाई आए थे 1977 मार्च से और 28 जुलाई 79, मतलब 2 साल तक के लिए आए हैं मोरारजी. फाइनेंस और होम अफेयर्स देखा इन्होंने. चरण सिंह जी आए थे, ये आए थे 79 में और 80 तक, मतलब लगभग 170 दिन तक काम किया चरण सिंह जी ने. और ऐसा कोई डिपार्टमेंट इनको दिया नहीं गया. फिर इंदिरा जी वापस आई 4 साल के लिए. पहले 11 साल के लिए थी, अब 4 साल 251 दिन के लिए डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर दे दिया गया. और यहाँ पर इन्होंने 1980 से 84 तक का काम किया, 4 साल का. ठीक है, फिर ये आए थे कब? 1980 से 84, 14 जनवरी से 31 अक्टूबर. तो ये 80 से 84 के बीच में कौन है? लाइक मेरी मॉम की शादी हुई थी 1983 में. सो दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. तो 80 84 माई elder brother was in my mother's womb. So that was kind of the time, that time Indira Gandhi was came. आफ्टर देन राजीव गांधी आए थे 89 से लेकर के 84 से लेकर के 89 तक. ठीक है, राजीव गांधी जी आएंगे 84 से लेकर के 89 तक आ गए. ये 5 साल 32 दिन के लिए आए. ये 1984 में इनको एक्सटर्नल अफेयर, टूरिज़्म, एविएशन, कॉमर्स, एनवायरनमेंट एंड डिफेंस एंड फाइनेंस दिया गया. एंड इसके बाद में VP सिंह जी अगेन आए. VP सिंह जी जो आए थे दैट वाज 343 डेज़ के लिए आए थे केवल. ठीक है, तो पूरा 1 साल भी नहीं है VP सिंह के पास. राजीव गांधी के जस्ट बाद में VP सिंह आए हैं 1989 में. तो 1989 से 1990 तक
पीएम कौन है? वीपी सिंह है। और इसी समय मैं पैदा हुई थी, तो उस समय पीएम कौन है? वीपी सिंह है, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो ऐसा कुछ शंकर दयाल जी थे, उससे पहले वो रामावतार जी, क्या नाम था, जो भी था वो थे। तो यहाँ पे डिफेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। फिर वीपी सिंह के बाद में आते हैं चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जो हैं ये आते हैं 1990 से 91 के बीच में। एक्सटर्नल अफेयर है इनके पास में। तो 90 से 91 के बीच में कौन है? चंद्रशेखर। फिर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आते हैं 1991 से लेकर के 1996 तक। एंड यहाँ पर केमिकल, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड रेलवे है इनके पास। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो कि 1996 16 मई से 1996 जून तक हैं, मतलब 16 डेज़ के लिए आए हैं अटल बिहारी जी। केमिकल, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री है इनके पास। फिर देवगौड़ा जी आएंगे अटल, मतलब चंद्रशेखर के बाद में है अगेन पीवी नरसिम्हा राव, मतलब पहले वीपी सिंह थे, फिर यहाँ पीवी नरसिम्हा राव आते हैं 4 साल के लिए। और फिर यहाँ पे अटल बिहारी जी 16 दिन के लिए आए। अटल बिहारी जी के बाद में यहाँ पर कौन आ रहे हैं? एचडी देवगौड़ा जी 1997 और 1996 में। 6 में तो कौन आ गए थे? वाजपेयी जी। देवगौड़ा जी आ गए 66 और 97 के बीच में। होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, अर्बन डेवलपमेंट। फिर इंद्र कुमार गुजराल आते हैं यहाँ पे 1997 से 1998 के बीच में। इंद्र कुमार गुजराल हैं, पर्सनल ग्रीवेंसेस और एक्सटर्नल अफेयर। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी अगेन, जो कि आते हैं 1998 से 2004 के कार्यकाल में। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, नॉन कन्वेंशनल, कोल, एनवायरनमेंट, सारा कुछ इनके अंदर आ गया। फिर आएंगे मनमोहन जी, जो कि 2004 से लेकर के 2014 तक रहेंगे, सीधा 4 से 2014 तक। तो ये पूरा कार्यकाल, जैसे मेरी स्कूलिंग पूरी करवा दी इन्होंने, कॉलेज भी करवा दिया, और पूरा ही मतलब लंबा कार्यकाल रहा इनका। सो पर्सनल ग्रीवेंसेस, एटॉमिक स्पेस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, कल्चर, सारा ही कुछ इनके पास रहा। दैन इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो 2014 में आए ये, और अभी तक भी इनका कार्यकाल 11 साल का हो चुका है। पर्सनल ग्रीवेंसेस, एटॉमिक स्पेस, साइंस, अर्थ, सारा कुछ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू का 16 साल का कार्यकाल है, इंदिरा गांधी का 11, नरेंद्र मोदी का 11 साल, मनमोहन सिंह जी का 10 साल, वाजपेयी जी का 6 साल, राजीव गांधी का 5 साल, नरसिम्हा राव का 4 साल, मोरारजी जी का 2 साल, लाल बहादुर जी का 1, वीपी सिंह का 343 डेज, इंद्र कुमार गुजराल का भी कम है 1 साल से, देवगौड़ा जी का कम है। तो वीपी सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह 170 डे ओनली, और गुलजारी लाल जी नंदा 13 दिन तक केवल, वो भी 2 बार, टोटल 26 दिन, ठीक है। तो ये हमने लेंथ में देखा है कि जवाहरलाल नेहरू हैं, फिर है इंदिरा गांधी, फिर है नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी का बढ़ गया होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि पहले हाँ जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल, फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। तो इंदिरा के बाद में मोरारजी और चरण सिंह आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी आते हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह के बाद में। और चरण सिंह के बाद में जस्ट राजीव गांधी है। फिर वीपी सिंह है, वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर है, फिर पीवी नरसिम्हा राव हो, चंद्रशेखर के जस्ट बाद में पीवी नरसिम्हा राव है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर यहाँ देवगौड़ा आ गए, फिर इंद्र कुमार गुजराल आ गए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर मनमोहन सिंह जी आए, और उसके बाद में अभी नरेंद्र मोदी जी। तो ये ग्राफ नज़र आया आपको। फिर यहाँ पर मैं अगेन आपको ग्राफ दिखा दूँ, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी जी, चरण जी की, फिर राजीव, वीपी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर मनमोहन, फिर नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बीजेपी जो है इन्होंने 17 साल तक कार्य किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 54 ईयर तक कौन काम कर रही है? कांग्रेस। बीजेपी केवल 17 साल तक काम कर रही हैं। जनता दल का 2 साल का कार्यकाल है, जनता पार्टी का 2 साल का है, एसजेपी का 223 डेज़ का है, और जनता पार्टी का अगेन यहाँ पे 170 डेज़ का कार्यकाल है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी ये जनता पार्टी है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे 69% टोटल मतलब पीएम की पोस्ट होल्ड की है। भारतीय जनता पार्टी ने 22% होल्ड की है। जनता दल ने 3.50%, ओके, ये जनता दल है।
तो यहाँ पे 3% की पोस्ट है। जनता पार्टी आ गई फिर से, तो ये आ गई 3.06%। समाजवादी पार्टी 0.78% बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जनता पार्टी आई सेकुलर वाली, ये 0.59%। तो सेकुलर वाली 0.59 है, जनता पार्टी 3.06% है, समाजवादी है 0.78%, जनता दल 3.6 है, और भारतीय जनता पार्टी ने 22% का कार्यकाल कंप्लीट किया। इंदिरा और कांग्रेस ने 69.8% का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाटाज विच वी हैव अबाउट द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ